एक बार दोबारा टोटल रिकॉर्ड। अच्छा, Jayant sir, you seen his photo in the videos or results? 59th rank, and 59th rank is no mean an achievement, and that too with a subject which is not very popular. आप लोगों ने भी जब एंथ्रो लिया था उससे पहले यू मस्ट नॉट बी नोइंग द स्पेलिंग ऑफ एंथ्रोलॉजी, है ना? So and putting the kind of labor and coming to this level, great. I wish that you emulate and whatever you can learn from toppers from their experiences and adapt according to your needs. So this opportunity grab with both the hands. Learn maximum what you can. मैं तो घर की मुर्गी हूँ, है ना? So the experiences of toppers, they can help you a lot in deciding your strategy. But before he starts the ritual that is there, पहले तो ये हमारा एक छोटा सा मोमेंटो होता है. We have a coin 1907. ये सर के लिए है. We have a tradition of giving a coin at least 100 years old. आपकी बारी भी आएगी, ठीक है? जो लोग जो है आईएएस बनते हैं उनको जो है ये सबसे बड़ा रिवार्ड है. इंस्टीट्यूट तो महाजन होता है, इंस्टीट्यूट की जेब से निकलवा लेना, ठीक है? ताजमहल भी कोई वो अपनी जगह है. दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. दिस इज ग्रेट, ठीक है? इसके अंदर चेक है, खाली मत समझना. सबसे बड़ी चीज जो है दैट कैन बी केप्ट लाइफ टाइम in temple or wherever that suits. ये my friend शिवा, इस बार जो है हमने क्या दिया जाए, ठीक है? ये ऐसे करना है, जैसे भी कर लो, ठीक है ना? This is forever blessing from Lord शिवा. जिंदगी में कुछ भी करेंगे, ठीक है? जब आप लोगों की बारी आएगी, कोविड लाइक थिंग्स वोंट बी देयर. इंस्टीट्यूट का तो खैर मजा ही अलग होता है. ये तो छोटा सा स्टूडियो है अपना. नाउ आई विश दैट एज मच एज यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मी. ऑलरेडी यू नो दे हैव कवर्ड पेपर 1 पार्ट 1. ओके. इंस्टीट्यूशंस, थिंकर्स, फॉसिल्स, प्राइमेट्स, आर्कियोलॉजी. इनको एवोल्यूशन का टर्मिनोलॉजी शुरू किया मैं लगातार. पेपर 2 इनका पूरा है अभी, बट स्टिल देयर आर सम हु हैव सम एक्सपीरियंस. सो नाउ डिपेंड्स ऑन यू पीपल. जस्ट इग्नोर मी, ठीक है? सो ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज यू कैन, particularly with respect to Anthro, because GS would be discussing here also and other places also. But anyway, you can ask GS also, you can ask interview also, you can ask essay also. It all depends on you. But the core has to be anthropology. Fine. But before that, I wish that he tells you his strategy about anthropology, and then you ask. Should I start? Yes. So first of all, respected Vaid sir, I want to convey my thanks to him and Vaid ICS for providing me all the guidance and support regarding my preparation for CSE 2020. So I started my journey in May 2019. So I would give a brief background about myself. So I am from Bikaner in Rajasthan, and I've done my graduation in manufacturing engineering from BITS Pilani. I graduated last year in 2020. And I started my preparation in my 4th year of my college. That was in May 2019. And during the summers between my 3rd and 4th year, I joined Sir's coaching. And my basic strategy was that from May 2019 to August 2019, I would be solely focusing on my optional. That was anthropology. So my schedule was like giving 80% to the optional and 20% to GS.
So I like to mention, and I'll also like to have this session to be as much as interactive, so that you can also clear your doubts as well. So I like to highlight some of the few points. The one of the most important part of the anthropology is the answer writing part, because this year's mains paper you would have saw it. It was, especially paper one, was very lengthy as well and also very tricky. So it has become very important that you do your paper not just on time, but you also write your answers very good. So just focus on the answer writing, and also in answer writing, value addition is one of the most important things. There are various small things that sir usually tells us. So I like to give an example. So आप बहुत सारे professors के नाम पढ़ते हैं. So in your answer, for example, if it is marriage, आप अगर किसी Indian professor का भी नाम लिख रहे हैं, तो just add professor in front of his name, so that yes, yes, sir, is it fine? Yes, sir. So for example, dominant, I'll take the example of dominant caste. So Professor M.N. Srinivas gave this concept. So instead of writing M.N. Srinivas in his book dash dash dash, you should write Professor M.N. Srinivas in his book The Dominant Caste of Rampur. So that would give more authenticity to your answer as well, and the examiner would also think that you are giving due respect to the professor as well. These are some of the small things that play a very important role. So I did this a lot in my paper 2, and my paper 2 score is 159. That is a very good score. So these are the few things that you can keep in mind. Secondly, I would say that having peer group is very important, because firstly, it would give you the right amount of competition within us. Secondly, there would be various people with different ideas as well regarding different questions. So your answers would be more diverse, and your workload would also be reduced by having a peer group with yourself. Thirdly, I would like to say is that in any question of the anthropology, you should add at least 2-3 thinkers, their viewpoints, so that your answer looks more authentic as well. So these are some of the key highlights of your anthropology, because at last, the examiner should think that you have good knowledge of anthropology, and that is what would set you apart from the other candidates as well. Secondly, I would say that getting your answers checked from the sir is also very important. I don't know how the process is right now. During our time, we used to go to sir and used to get our answers checked. So the feedback that he gives you is very important, and you should work upon your feedback as well. And especially, you have not read now paper 2, but sir specially told me that in the tribal section, you should also quote the budget. You should also quote the outlay of various schemes as well. For example, tribal subplan is there. So each year there is a certain amount of outlay that government gives. So adding that in your answer would make your answer more, I would say, very good in front of the examiner. So this thing is also very important. And also collect case studies, and good case studies, in both paper 1 and paper 2. And by case studies, I mean that the kind of case studies that can be used at various times, at various places. So that is also very important. You can make a separate box in your answers to highlight that you have written a case study. So for example, in tribal section, you would be collecting a very good amount of case studies as well. And also, sir also shares various news, various articles. So you can make a short note of it. Here also, peer group become very important, that you can divide your workload among your friends, and then you can share your notes as well. And like, these are the basic, I would say, the outline. Any questions you people have, I would like to be answered those as well. So I have. Sir? Go on. Sir, I wanted to ask that in the online process, as we are not able to get our answers evaluated by the sir, so then in this circumstances, how should we approach towards this answer writing thing, and how can we enrich our knowledge? Sir, firstly, what you can do is you can make a peer group of 4 to 5 people, and the people who are very serious about the preparation, and you can share your answer among yourselves. Then you would get to know how the kind of answer that you have written. And if you feel that it is still incomplete, then you can get your feedback from the sir. I guess that would be the best approach. Hello, sir. Hello. Yeah, many congratulations, sir, for the great achievement. Thank you. Sir, I have a small question regarding the unconventional questions which have been coming in
particularly in paper 1 in the compulsory section. So Yes, how sir. did you prepare beforehand for dealing such kind of questions, or did you cover certain other areas as well, some other books? ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल द जेन गोडाल क्वेश्चन जो पूछा गया था इन पेपर 1, उस पे यार मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी 3rd ईयर में. सो वो मेरी किस्मत अच्छी थी. ठीक है, सीधा मैं ये बोलूंगा. मैं माय फ्रेंड वाज इन फोटोग्राफी, सो हमने 3rd ईयर में भी वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हर. सो वो हेल्प कर गया था. तो मैं वही कह रहा हूँ कि कई चीजें ऐसी होती है जिंदगी में कि आप लाइफ में करते हैं एंड इट कैन हेल्प यू इन योर जो भी मतलब प्रेपरेशन में. जो नतूफियन कल्चर वाला क्वेश्चन था, आई रेफर टू अक्षत जैन सर्स जो बुक है उनकी, उन पे उन्होंने मेंशन किया था कहीं पे, बस एक साइट का नाम मेंशन किया था, नतूफियन इन मीजोलिथिक या फिर नियोलिथिक. तो वो मुझे याद रह गया था. बट गिवन द, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि गिवन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए. एंड इधर भी आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट नोइंग द करेक्ट आंसर, पर आप 2 पेज उस पर एटलीस्ट लिख सकें. मतलब आप बेसिकली देखो, ऐसा है कि आपको 10 में से 0 नहीं लेके आना, आपको 10 में से एटलीस्ट 2-3 तो लेके आने उसमें, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि उस क्वेश्चन में आप बाकी कैंडिडेट से ऊपर है. सो इफ आई कैन गिव यू द एग्जांपल, माय स्कोर इज 995 एंड मैंने नतूफियन वाला क्वेश्चन भी किया था. और उसमें मेरे को 2-3 नंबर ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे. मैंने इतना अच्छा आंसर नहीं लिखा था, बट अगर मेरे 5 नंबर भी कम होंगे, सो आई वुड हैव गॉटन इनटू आईपीएस. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड it would come from giving more and more tests as well. There were many question like ethics and genetic engineering. ये जो क्वेश्चन था, आप इसको जीएस की नॉलेज से आंसर कर सकते हो. इन जीएस 4 एथिक्स आप इसके बारे में पढ़ते हैं. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज इन न्यूज एज वेल, जो चाइना के अंदर क्लोनिंग या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ था आई गेस, तो उस पे वो क्वेश्चन था. तो मैं बेसिकली इसका ब्रॉड आउटलाइन इज दिस कि जो सिलेबस में कीवर्ड्स मेंशन्ड है उसके आसपास का भी आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखो. एंड जो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छा है, देन यू वुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. एंड इफ स्टिल आपको फिर भी नहीं आ रहा आंसर, कुछ तो लिख के आओ, एटलीस्ट 2-3 नंबर मिल जाए, ये कहना चाह रहा हूं उसके आसपास का. जैसे विक्टर टर्नर एंड लिमिनैलिटी वाला क्वेश्चन था, मेरे को नहीं पता था लिमिनैलिटी क्या होती है, बट मेरे को जो विक्टर टर्नर के बारे में पता था, जो सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी है, वो लिख दिया मैंने 1.5 पेज, ताकि 1-2 नंबर दे दे एग्जामिनर कि हाँ विक्टर टर्नर के बारे में तो पता है. तो ये अप्रोच थी इसके बारे में. सर, Hello, sir. जी, हेलो. Hello, sir. At first, I congratulate you, sir, for your achievement. And Thank you. sir, I was asking कि sir, जब तक क्लासेस होते हैं तो उस दौरान आपकी प्रिपरेशन जैसी भी रहती है, अंडर राइटिंग जो भी रहता है, उसके बाद जब आप क्लासेस कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद क्या अप्रोच रहता है? मतलब जब आप उसके बाद जब आप पढ़ाई शुरू करते हो और तब से लेकर के एक सेटिस्फाइड आप अब तक होते हो, उस बीच क्या आपका अप्रोच रहा? देखो, क्लासेस खत्म होने के बाद अप्रोच ये रहता है कि सबसे पहले आप सिलेबस को उठाओ और प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाओ. देन आप मैपिंग करना चालू करो कि ये कौन से पॉइंट्स पे आपके नोट्स कवर्ड नहीं है. तो आप उसके अंदर रिसोर्सेज रेफर करके, जो डिफरेंट जो बुक लिस्ट होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं, उससे अपने आप नोट्स बनाओ और रिविजन करना चालू करो. क्योंकि हम जब आंसर राइटिंग लिखते हैं, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिटेनिंग दैट थिंग जो आप लिख रहे हैं, बिकॉज पेपर के अंदर आपको एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू राइट आंसर्स, एंड कंप्लीटिंग पेपर इन टाइम वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है. सो फर्स्टली यू शुड कवर ऑल द सिलेबस. जो आपको लगता है कि उस पर आपके नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है, पहले वो कवर कर लीजिए. देन यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग योर नोट्स एंड देन यू कैन स्टार्ट गिविंग फुल टेस्ट एज वेल. सो दैट वाज माय अप्रोच इन दिस रिगार्ड. hello, sir. Hello. Sir, my question is, how did you manage your optional with GS? यार, फर्स्टली एज आई सेड कि May 2019 to August 2019, 4 months my ratio was around 70 to 80% towards optional and 20% to GS. Then from September to December वो रिवर्स हो गया. तो 80% मैंने GS पढ़ा, 20% अपना ऑप्शनल किया. एंड अगर आप डेडिकेटेडली 4 to 5 months दो ऑप्शनल को, सो यू आपके नोट्स अच्छे से कवर हो जाएंगे. एंड ऑल्सो आफ्टर प्रीलिम्स आपके पास 3 महीने रहता है, तो उसमें भी आपको यही अप्रोच रखनी है. उसमें मैंने 50-50 दे दिया था, एटलीस्ट जो स्टार्टिंग का 1.5 महीना है, 50% आई वॉज डूइंग ऑप्शनल एंड 50% GS. बिकॉज द थिंग इज कि जो कॉस्ट बेनिफिट होता है वो GS से कहीं ज्यादा आपको ऑप्शनल में मिलेगा. जितना आप आर्ट्स पुट इन ऑप्शनल के अंदर कर रहे हो, उसका बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको. और अभी आप लोगों टॉपर्स के अगर इफ यू कंपेयर देयर मार्क्स एज वेल, ऑप्शनल में बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा, बट यू वोंट फाइंड दैट मच वेरिएशन इन GS. सो उस हिसाब से आप उसको बैलेंस कर सकते हो मेरे हिसाब से.
सर हेलो, ये आप क्या अपना डेली रूटीन बता सकते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोते समय तक का? यार ऐसा कोई फिक्स्ड शेड्यूल तो नहीं था मेरा, बट देखो ये पर्सन टू पर्सन है। ऐसा मतलब जो रिजिड टाइम टेबल होता है कि हम पेपर पे लिख के चिपकाते हैं 5 to 6 ये करूंगा, वो तो नहीं था एटलीस्ट मेरे केस में। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं तो इतना फॉलो होता भी नहीं है, सीधी बात है। बट ये प्रोसेस रहता था कि जो टारगेटेड अप्रोच होती है कि वीकली मैं कितने टॉपिक्स कर सकता हूँ। सो मैं एक ऐसे लिस्ट बना लेता था कि एक वीक में मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, एक मंथ में मुझे ऑप्शनल का इतना इतना पार्ट कवर करना है। नो मैटर व्हाट मुझे कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ऐसा होता है कि हफ्ते में या फिर महीने में 2-3 दिन ऐसे आएंगे जब आपका जरा भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो यू वुड बी वेस्टिंग ऑल ऑफ योर डे एज वेल। सो ऐसा कुछ रिजिड शेड्यूल नहीं था, बट मोर ऑफ ए टारगेट, माइक्रो टारगेटिंग जिसे बोलते हैं, कि यू कैन मेक योर स्ट्रेटेजी इन अ वे कि आप एक वीक में टारगेट बनाइए जीएस एंड ऑप्शनल का, देन ग्रेजुअली उसको मंथ पे ले जाइए, और एक जो टाइमलाइन होती है ईयरली वो आप रखिए। तो ईयरली मैं बता देता हूँ, ईयरली में आई थॉट कि इन 4 months आई वुड बी कंप्लीटिंग माई ऑप्शनल। जो नेक्स्ट के 2 months होंगे उसमें इट वुड बी फोकस्ड ऑन जीएस, एंड ऑप्शनल में थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करता रहूंगा। एंड बाय दिसंबर आई इंश्योर्ड कि मेरा जीएस का रीडिंग हो जाए अच्छे से, एक्सेप्ट GS4, GS 1 2 3 हो जाए मेरा, और मेरा ऑप्शनल हो जाए, ताकि फिर हमारे के इन माय केस ड्यू टू लॉकडाउन 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए थे, तो फिर मैंने एथिक्स भी कर लिया था बिफोर माय प्रीलिम्स। सो ये ब्रॉड टाइमलाइन हो सकती है। तो जनवरी तक यू कैन इंश्योर कि आपका ऑप्शनल और GS 1 2 3 हो जाए। सो दैट कैन बी द अप्रोच दैट यू कैन फॉलो। और सर ये आप मेंटल स्ट्रेस कैसे हैंडल करते थे? ये तो कोई टॉपर एड्रेस भी नहीं करता है। ठीक है यार, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी देखो, मोटिवेशन 2 तरीके के हो सकते हैं। अब एक्सटर्नल मोटिवेशन कई लोग देखते हैं यूट्यूब पे, जैसे लबासना के वीडियोस देख लिए, या फिर IAS IPS एंट्री देख ली, वो सब बहुत चलते हैं यूट्यूब पे। तो वो सब है ना, इतना काम का नहीं होता, बिकॉज आप एक्सटर्नल मोटिवेशन से आप 2 या 3 दिन तक मोटिवेशन रख सकते हैं। कभी भी मेंटल स्ट्रेस हो तो फर्स्टली अगर पढ़ने का मन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मत पढ़ो। नींद आ रही है तो सो जाओ, आराम से उठ के आराम से पढ़ लेना। पढ़ने का मन नहीं है तो एक दिन पूरा टाइम वेस्ट कर दो, अपना आप गिल्ट के बाद तुम अपना पढ़ने लग जाओगे। मेंटल स्ट्रेस की जहां तक बात है, इंटरनल जो मोटिवेशन है कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, जब आपने डिसीजन लिया था कि आप क्यों आना चाहते हैं सर्विसेज के अंदर, उस चीज को याद करो, तो वो आपको अल्टीमेटली पुश कर देगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। एंड सेकेंडली इन माय केस जो पीयर ग्रुप था, हम 104 रैंक जिसकी आई है वो मेरे साथ ही पढ़ रहा था, एंड 320 ऑल्सो, सो एंड 2 other people as well who have gave prelims this year as well। तो हम लोग आपस में मोटिवेशन देते रहते थे खुद को, और कंपटीशन एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है तो सबसे अच्छा फ्रेंड आपकी फैमिली होती है। अपने पेरेंट्स से बात करो, वो आपकी हर चीज को समझेंगे, और अच्छे से आप, और डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में हेल्थ भी खराब होती है और वो उसका मेंटल पे भी ध्यान पड़ता है। तो फ्रूट्स वगैरह खाओ, ये फास्ट फूड वगैरह है थोड़ा लिमिटेड में रखो, बट एट द एंड ऑफ द डे अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनसे बात करो, एंड आई थिंक यू विल फील रिलैक्स्ड उसके बाद। सर जैसे कि आपने पीयर ग्रुप से रिलेटेड कुछ चीजें कहा, तो इसमें पीयर ग्रुप में कुछ फ्रेंड होते हैं जो आपको अपना फ्रेंड नहीं समझते, कॉम्पिटिटर समझते, क्योंकि वीकली टेस्ट होते हैं तो आपके मार्क्स उनसे ज्यादा आते हैं, तो थोड़ा काइंड ऑफ जेलेसी होती है उनको। तो देखो सिचुएशन कैसे हैंडल करें? देखो हमारे केस में यार, हम लोग कॉलेज के ही फ्रेंड्स थे, जो हम नॉर्मल फ्रेंड्स थे। इसको 2 तरीके से लेना है। अगर कंपटीशन पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, ठीक है, जेलेसी हो रही है आदमी को, पर आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज गुड थिंग फॉर यू। पर जब आप लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लग जाओगे इन एनी वे, सो वो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना, और फिर वो आपका फ्रेंड भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पीयर ग्रुप उसी के साथ बनाओ जिसकी आपकी पहले से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो बेसिकली, और अगर नहीं है तो भी वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका दोस्त कैसा है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी कितने हजार लोग लेते हैं, आप 4 लोग हैं आपस में कम्पीट करके अगर एक दूसरे को भी थोड़ा भी नुकसान पहुंचा दो तो इट डजंट मैटर। मतलब कंपटीशन आपका अल्टीमेटली पूरे इंडिया लेवल पे है, तो उस पर आपको फाइट करना है। तो इट जो भी मतलब ये कर रहा है इन केस, तो ये अच्छी अप्रोच उसके लिए भी नहीं है, मतलब कोई पॉइंट नहीं है उसका। मेरा कहने का मतलब ये है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, माय डाउट इज रिगार्डिंग आंसर राइटिंग रिगार्डिंग जीएस। सर, व्हाट शुड बी द अप्रोच? तो पैरेलल आंसर राइटिंग होनी चाहिए, फर्स्ट अप्रोच शुड बी टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, कि एक बार जीएस 1 2 3 हम लोग पढ़ लें, देन वी शुड गो फॉर द आंसर राइटिंग, या फिर उसके साथ ही पैरेलल में डेली उसको टाइम दिया जाए आंसर राइटिंग का? ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें। देखो सबसे पहले 2-3 महीने आंसर राइटिंग नहीं करनी है। अब आई थिंक अब अक्टूबर चल रहा है, तो आप 4-5 महीने के फेज में आ चुके हो जहां पे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, तो आपका अच्छा अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बन चुका है।
सो फॉर आंसर राइटिंग आई यूज्ड IS बाबा का जो TLP प्लेटफॉर्म है, उस पे वो लोग स्टैटिक के क्वेश्चंस डालते हैं डेली। सो डे वाइज वो 5 क्वेश्चंस डालते हैं सिलेबस के हिसाब से। सो फॉर एग्जांपल आपने GS1 में सोसाइटी के पार्ट्स के नोट्स बना लिए हैं और उसको रिवाइज कर लिया है, तो उस पे आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो जो डे के दिए हुए हैं, और वो मॉडल आंसर भी डालते हैं, तो उन मॉडल आंसर्स को बाद में आप वैल्यू एडिशन कर लो अपने एक्चुअल नोट्स में, ठीक है। और ये आंसर राइटिंग अब एटलीस्ट आप 2 महीने तक करो, तो 60 दिन में आप अगर 60 into 5 300 होता है, पर अगर आप 200 आंसर्स भी लिखोगे तो आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। देन यू कैन स्विच ऑन टू फुल जो टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट सीरीज होती है प्रॉपर, तो उसके आप जा सकते हो। सो मैंने फोरम की MGP टेस्ट सीरीज ली थी, सो आई गेव सेक्शनल एज वेल एज फुल टेस्ट एज वेल। एंड ये कहूंगा कि मेंस इज नॉट अबाउट कंटेंट, मेंस इज ऑल्सो नॉट अबाउट क्या मतलब आपकी वैल्यू एडिशन कर रहे हो, मेंस इज ओनली अबाउट आंसर राइटिंग, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, बेसिकली एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए कि आपके हाथ दुखने लग जाए या नम हो जाए हाथ आपके, और जितना आंसर्स लिखो, जितना टेस्ट दो, उतना कम है मेंस के लिए। तो इसको इग्नोर मत करना, इवन प्रीलिम्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। सो मतलब एक एनालॉजी रहती है कि मेंस इज अबाउट सिंगिंग, ठीक है, आपको गाना गाना है उधर, बट लोग लिरिक्स रट के चले जाते हैं, तो उनको गाना गाना तो आता नहीं है, लिरिक्स तो सब याद है जो कंटेंट है, पर लिखना ही नहीं आ रहा, तो फिर पॉइंट नहीं है उसका कोई। तो आपको आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए अच्छे से, तो वो आंसर राइटिंग आपकी आएगी प्रैक्टिस से। सो मैंने बता दिया कि ये अप्रोच आप रख सकते हो कि छोटा छोटा सिलेबस कवर करते जाओ और उसके साथ साथ में आंसर्स करते जाओ, एंड देन वैल्यू एडिशन ऑल्सो, तो आपका अच्छे से मटेरियल भी तैयार हो जाएगा। सर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, बट जनरली मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे टॉपर्स ने मेंशन किया कि उन्होंने GS 4 मंथ्स या उससे कम में कंप्लीट किया इंक्लूडिंग यू, देन इज इट रिलेवेंट? मींस ये सच में एप्लीकेबल है कि 4 मंथ्स में आप पूरे GS 1 2 3 पे कमांड आपका आता है? नहीं यार, ये किसने बोला है 4 महीने में चारों GS कैसे हो सकता है? किस चीज के बारे में बोल रहे हो आप? मेंस के लिए? तो जैसे कि आपने कहा यस सर मेंस के लिए। यार मैंने ये बोला कि तुम्हारी अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, उसके बाद तुम नोट्स बनाना चालू करो उसके ऊपर, देन यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग ऑफ दैट पार्ट। पूरे नोट्स खत्म होने का वेट मत करो, मैं ये कह रहा हूँ, वो कभी नहीं खत्म होंगे, वो तुम्हारे प्रीलिम्स के बाद भी नोट्स चलते रहेंगे, बट एक सब्सटेंशियल पोर्शन अगर तुम खत्म कर ले हो, जैसे GS1 का मैंने बोला सोसाइटी बहुत सब्सटेंशियल पोर्शन है, तो अब उस पे नोट्स बना के यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग ऑन दैट पार्ट। सिमिलरली GS3 में जैसे एग्रीकल्चर का टॉपिक है, तो यू कैन मेक नोट्स ऑन दैट 3-4 डेज में, देन यू कैन डू आंसर राइटिंग ऑन दैट पार्ट। ये अप्रोच रखो आंसर राइटिंग की, रादर देन डायरेक्टली जंपिंग इनटू आंसर राइटिंग। एटलीस्ट थोड़ा कंटेंट आपके पास होना चाहिए कि आप लिखो उसके अंदर जाके, तो ये अप्रोच बोली है मैंने, ये आप फॉलो कर सकते हो। आपका अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि जनवरी तक आपका GS 1 2 3 प्लस ऑप्शनल के नोट्स खत्म हो जाने चाहिए। अगर एथिक्स हो जाए तो वेरी वेल एंड गुड, बट आप प्रीलिम्स के बाद भी एथिक्स कर सकते हो। ओके सर। हेलो सर, वन मोर क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का मतलब शेड्यूल और टाइमिंग कब रखना चाहिए? यार देखो, मेरे केस में ऐसा था, एकदम डिफरेंट हो गया था ऑल टुगेदर। मैंने जनवरी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया था, मैंने आंसर राइटिंग की थी पर सेक्शनल या फुल टेस्ट नहीं दिया था। सो जब कोविड-19 की वजह से मई से पेपर अक्टूबर में शेड्यूल हुआ, तो मैंने जून और जुलाई के अंदर एटलीस्ट 6-7 टेस्ट दे दिए थे, जो फोरम के MGP टेस्ट सीरीज है, इन सेक्शनल टेस्ट ही दिए थे, फुल टेस्ट मैंने मेंस के बाद ही दिए। एंड व्हाट वी डिड वाज, जो मैंने और मेरा फ्रेंड है, वी डिसाइडेड कि इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, 1 month बिफोर एक्चुअल मेंस, वी विल गिव 3 सिमुलेशंस। सो 3 सिमुलेशन का मतलब एक दिन ऐसे लिखेंगे, एक दिन GS 1 2 3 4 और ऑप्शनल 1 2। तो हमारा एक्चुअल मेन से पहले 3 सिमुलेशन में ही 3 मेंस के अटेम्प्ट हो गए। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे टाइम में सर्दियों में मेंस हो रहा था, तो सर्दियों में राइटिंग इनिशियली बहुत स्लो होती है, आपको लिखने में बहुत दिक्कत होती है, तो हमने वो प्रैक्टिस दिसंबर में कर ली थी फुल टेस्ट की। बट मैंने प्रीलिम्स के पहले, जैसे लॉकडाउन की वजह से जो पेपर पोस्टपोन हुआ था, तो उसके 2-3 महीने में आई रोट 6-7 सेक्शनल टेस्ट एज वेल। हेलो सर, इसमें एक चीज पूछनी है सर, आपने जो करंट अफेयर्स है वो कैसे किया, मतलब करंट अफेयर्स? ठीक है यार, देखो करंट अफेयर्स का ऐसा सीन है कि करंट अफेयर्स एक न्यूज़पेपर पढ़ लो डेली। आई वुड रिकमेंड इंडियन एक्सप्रेस। न्यूज़पेपर के नोट्स मत बनाना, टाइम वेस्ट होगा आपका, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, मैंने करके देखा ये। स्टिल अगर आपको लग रहा है तो यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ दैट, बट इतना यूजफुल नहीं होता। फिर सोते समय इनसाइट्स IAS पे डेली दे पुट समरी ऑफ देयर करंट अफेयर्स, तो वो पढ़ के आप सो जाओ, तो आपके 2 रिवीजन हो गए, एक न्यूज़पेपर से, दूसरा इनसाइट्स IAS से। तीसरा, आप कोई भी एक कोचिंग का मंथली मैगजीन कर लो। मैंने मंथली मैगजीन इसलिए नहीं किया था बिकॉज आई वाज इन कॉलेज, तो मेरे पास लेस टाइम था,
अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो आप विजन का मंथली कर लो, नहीं तो जो पीटी 365 और मेन 365 आता है उसको अच्छे से करना है आपको। तो ये बेसिक अप्रोच था। बाकी जो बिग पिक्चर आता है जैसे ऑन सनसेट टीवी, जो अर्लियर राज्यसभा टीवी था, वो हो गया, वो देख लो। भारता फर्स्ट पे बिग पिक्चर आ रहा है, वो देख लो। देयर आर सम यूट्यूब चैनल्स लाइक अमित सेन गुप्ता, पाथ फाइंडर, वर्ल्ड अफेयर्स, जिसपे वो थोड़े थोड़े क्लिप्स डालते हैं जो आप 2x पे देख सकते हो इन योर लेजर टाइम। सो बेसिक अप्रोच ये था। हेलो सर। सर सेम ही क्वेश्चन है सर कि मतलब आजकल पेपर में स्टैटिक करंट अफेयर्स ज्यादा आ रहा है, तो सर जैसे जो भी न्यूज में रहता है करंट इश्यूज रहते हैं उसका स्टैटिक पार्ट आता है, तो सर उसके लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि एनी हाउ वो जीएस प्रिपरेशन में कवर हो ही जाता है, तो उसको स्टैटिक पार्ट जो है। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको हेडलाइन को नहीं पढ़ना है, आपको हेडलाइन के नीचे जो इश्यू है, जो अंडरलाइंग इश्यू है, उसको पहचानना है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे जीएसटी का काफी ज्यादा इशू चल रहा था, तो क्वेश्चन जो आया था दैट वाज ऑन जीएसटी कंपनसेशन सेस, जो कोविड के टाइम पे काफी इशू चला था, तो क्वेश्चन उसके ऊपर आया था। तो आपको ऐसे समझना है ये। सो फॉर एग्जाम्पल कोई भी जैसे टॉपिक आ रहा है ऑन, जैसे फार्मर्स का वो चल रहा है, तो उस पर टॉपिक्स आ रहा है, तो अंडरलाइंग इश्यूज इज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, तो क्वेश्चन यूपीएससी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे पूछेगा रादर देन हेडलाइन। तो आप ऐसा कर सकते हो इस पे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो यू विल हैव अ रफ आइडिया कि कौन कौन से टॉपिक्स अभी काफी न्यूज में हैं। सो यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोस 50-60 टॉपिक्स, और फिर गूगल पे जाओ, सीधा वो टॉपिक लिखो और आगे यूपीएससी डाल दो उसके, और तुम गूगल सर्च देखोगे तो तुम्हें बहुत सारी कोचिंग के बहुत सारे वो मिलेंगे एनालिसिस, वो 360 डिग्री एनालिसिस होगा उसके। तुम आई वुड प्रेफर ऑनलाइन नोट्स बना लो, आई यूज वन नोट, तो वो तुम्हारा टॉपिक होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। और फिर वो अगर तुम जीएस में भी पढ़ोगे तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा ये। तो ये अप्रोच रखो। अब जैसे कोई भी, अब जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का कोई इशू है, तो मेजर इशू वही होगा कि इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या क्या और उसका वे फॉरवर्ड क्या है, अंत में आपको वही लिखना है जो जीएस3 के सिलेबस में है। तो ऐसे आप एनालाइज करो, और पीवाईक्यू को देखो एक बार, मतलब मैं कह रहा हूँ कि पीवाईक्यू के साथ तो जितना टाइम बिता सकते हो बिताओ, एंड सेम फॉर एंथ्रोपोलॉजी एज वेल। इस बार पेपर 2 अगर तुमने देखा होगा तो मेनी क्वेश्चंस वर रिपीटेड, तो आप पेपर के क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर सकते हो इन अ वे, और उस पर बिफोर हैंड अपने नोट्स अगर तैयार रखोगे आप, तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा वो। Hello, sir. Hello. Sir, actually, I wanted to ask daily news of Vision that they, the compilation that they give, is it fruitful? कौन सा फिर से, can you repeat it? So like as you said, Vision is the compilation that Vision provides is good. So they also provide one that is the daily news compilation. अच्छा. Yes sir. So will it be fruitful enough, or should I do just reading part of the newspaper? यार देखो, अगर 10-15 मिनट लग रहे हैं, जैसे देखो सोते समय सब फोन देखते होगे, तो व्हाट्सएप या इंस्टा की जगह अगर वो पढ़ लिया 10-15 मिनट में, तो तुम्हारा फायदा ही है उसमें। इफ इट इज टेकिंग मोर देन 1-2 आवर्स, देन वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उस पर। जैसे आई सेड अर्लियर कि इनसाइट्स का आई यूज्ड टू रीड समरी ऑन माय फोन रात को सोने से पहले, which would hardly take 10 to 15 minutes. So if it is taking that, then you can choose any coaching, but एक ही करना, मतलब ज्यादा मत करना। जैसे अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो अगर विजन का कर रहे हो तो बस विजन का करना, नहीं तो इनसाइट्स का करना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मतलब 10-15 मिनट लग रहे हैं तो इट वुड बी वर्थ इट, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा तुम्हारे। हेलो सर। हेलो। एक सर, आपने जो अभी एंथ्रोपोलॉजी का बताया ओवरऑल टाइमलाइन, एक बार वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मेन से पहले तक का एक बार थोड़ा ब्रीफली कि इस मंथ तक मैंने ये कर लिया था, इस मंथ तक, उसका थोड़ा आइडिया बताओ, सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी। यार इतना एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट आई वुड ट्राई। देखो पेपर 1 होता है वो सबसे, उसका सिलेबस एक तो बड़ा है और थोड़ा मतलब आई वुड से डिफिकल्ट इन अ सेंस, क्योंकि हम न्यू होते हैं, हमें एकदम नए होते हैं टॉप एंथ्रोपोलॉजी को लेके। तो जो सर का जैसा सिलेबस रहता था कि स्टार्टिंग फ्रॉम सोशियो कल्चरल, पहले मैरिज पढ़ते हैं हम, फिर मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो 1.5-2 महीने तो वही चला। एंड थ्योरीज वाला पार्ट था वो थोड़ा लंबा चलता है, तो थ्योरीज पे आई वुड से कि आप अच्छा टाइम बिताना, और उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। इस बार जैसे उन्होंने पूछा था पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से क्वेश्चन, तो वो अच्छे से कर लेना आप। देन पेपर 2 होता है, उसमें लगता है 1 ही महीना है, बट वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो काफी स्कोरिंग है पेपर 2। एंड पेपर 2 का कंटेंट मोर और लेस आप काफी इनोवेशन कर सकते हैं उसमें, और जीएस का भी ओवरलैप है। तो ये था मोर और लेस, बट ये था कि 2 महीने पेपर 1 चला था और 1 महीने पेपर 2, और फिर मैंने 1 महीना एक्स्ट्रा और लिया था ऑन द क्वेश्चन, ऑन द टॉपिक्स जहां पे मेरे को लगा था कि मेरे नोट सफिशिएंट नहीं है। सो बाय अगस्त मेरा रफली मैंने कर लिया था प्रिपेयर, बट दिसंबर तक वैल्यू एडिशन चल ही रहा था,
ठीक है, तो ऐसा कुछ मतलब फिक्स टाइमलाइन नहीं है कि इस दिन ये टॉपिक किया था, बट आप ये कह सकते हो कि 4-5 महीने में आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। सर ये एक चीज पूछनी थी कि जैसे अभी क्लासेस चल रहे हैं और सर साइमल्टेनियसली खुद का भी सेल्फ स्टडी करते रहना है एंथ्रोपोलॉजी के लिए, तो सर ऐसे हो जाता है कि कभी कभी मतलब थोड़ा सा भी मतलब मेरा जैसे बैकलॉग चल रहा है, तो सर फिर वो जो बैकलॉग चल रहा है जो क्लास में चल रहा है, और क्लास का प्रीरिक्विजिट ये है कि पढ़ के आना पड़ता है और सर वो बेनिफिट करता है क्लास में, तो सर मुझे ये पूछना था कि सर फिर बैकलॉग पे ज्यादा फोकस करना है या फिर इस पे, और कब तक खत्म कर लेना है इन सब चीजों को सफिशिएंटली? यार आई वुड से कि देखो, जो सर अभी जो पढ़ा रहे हैं और जो बोल रहे हैं पढ़ के आने को, वो आप पढ़िए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा वो टॉपिक अंडरस्टैंड करने में। और आई थिंक सर ने जैसे भी बताया कि आपका बायोलॉजी इवोल्यूशन वाला पार्ट चालू हुआ है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो कंसेप्चुअली ही है सारा, इन अ वे थोड़ा रटना भी पड़ेगा उसमें, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें पढ़ के आओगे तो अच्छा है। जो बैकलॉग है आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा और मतलब और तो कुछ रास्ता हो नहीं सकता, ज्यादा अमाउंट ऑफ आवर्स पुट इन करो उसके अंदर, और जितना जल्दी उसको खत्म कर लो उतना बेटर है। तो यही ओनली वे आउट है कि ज्यादा स्टडी आवर्स आप बढ़ाओ अपने, ताकि आप उसको कवर कर लो अच्छे से। सर तो बेसिकली उसको अगर दिसंबर के पहले टारगेट पकड़ा है ऑप्शन खत्म करने का, तो बैकलॉग उसके पहले ही खत्म कर लेना है? यार देखो, बैकलॉग किस सेंस में तुम्हारा, कैन यू क्लैरिफाई की मतलब? नोट्स सर, कंसेप्ट्स वगैरह तो ठीक है, क्लास वगैरह से समझ रहे हैं सर, खुद के जो नोट्स होते हैं ना सर, वो उसकी बात कर रहा हूँ। यार देखो, ऐसा टाइमलाइन बना सकते हो कि डेली जो सर की कोचिंग है वो और उससे रिलेटेड जो काम है उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आवर्स डिलीनिएट कर दो। उसके बाद जो तुम्हारा बचा टॉपिक्स बचे उसको तुम फिक्स अमाउंट ऑफ आवर्स डिलीनिएट कर दो, और जो तुम्हारा जीएस का तुम पढ़ रहे हो उसको कर दो। तो नोट्स साथ साथ में उस आवर्स में बनाते रहो, जिसमें आपको मतलब बेसिकली जो आपका टाइम बच गया अपार्ट फ्रॉम जीएस एज वेल एज कोचिंग, तो उसमें आप नोट्स बनाते रहो, वो हो जाएगा उस हिसाब से। बट मतलब अल्टीमेटली यही है कि आपको अपने आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि आपका बैकलॉग कवर हो पाए। बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन करंट वाले, जो अभी जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, फिर वो बैकलॉग बढ़ता ही चले जाएगा। और सर एक और क्वेश्चन था लास्ट, सर टेस्ट सीरीज रिलेटेड पूछना था सर, व्हाट वुड बी द राइट टाइम टू टेक द टेस्ट सीरीज फॉर ऑप्शनल, सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ, तो सर इसके बाद यार आई वुड से कि जब तुम्हें लगे कि तुमने अच्छा सब्सटेंशियल पोर्शन कवर कर लिया है, सो अभी जैसे सर अगर जैसे तुम्हारा जैसे पेपर 1 खत्म हो जाए तो यू कैन टेक द टेस्ट सीरीज, ताकि और आपका रिवीजन कितना है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो आई वुड से कि जब आपको लगे कि आपको इनफ अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस है कि आपने काफी सब्सटेंशियल पोर्शन कवर कर लिया, तो यू कैन टेक द टेस्ट सीरीज एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग द सेक्शनल टेस्ट। हेलो सर। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो कांग्रेट्स सर। थैंक यू। एंड सर आपने करंट अफेयर के लिए मेंशन किया कि सुबह एक न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, बट सर उसी में ही 1.5 से 2 घंटा चला जाता है, लगभग 1 से 1.5 घंटा। एंड सर शाम में जैसे आपने बताया वो तो ओके है, बट सर सुबह के में वही इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है। यार 1 घंटे के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो अभी देखो मैं बोल देता अभी कि स्पोर्ट्स अवॉइड करो, बट जैसे क्वेश्चंस आए प्रीलिम्स में 3 स्पोर्ट्स के, तो उस पर भी थोड़ा ग्लांस कर लेना, बट द क्वेश्चन इज कि आपको उसको 1 घंटे के नीचे लेके आना है। सो जो जैसे न्यूज़पेपर में आइडियल टाइम इज कि अराउंड 50 मिनट्स टू 1 घंटा लगना चाहिए आपको। अब वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको बहुत सारी चीजें न्यूज ऐसी होती है, जैसे लोकल वाली न्यूज आप पूरी इग्नोर करो, उसको नहीं पढ़ना है। और ज्यादा कुछ आर्टिकल्स, कई बार एडिटोरियल्स बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं कि आइदर दे आर पॉलिटिकल बहुत ज्यादा या फिर बहुत आइडियोलॉजिकल होता है, तो यू कैन अवॉइड दोज टॉपिक्स एज वेल। तो आपको वो मैनेज करना होगा कि आप उसको 1 घंटे के अंदर कैसे लेके आए। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आप अब ये पहचानना चालू करिए कि क्या आपको नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर में, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कि क्या आपको पढ़ना है। तो वो आप पहचान लेंगे तो आपका टाइम अपना आप रिड्यूस हो जाएगा 1 घंटे में। तो एडिटोरियल्स में बायजू का एनालिसिस आता है वगैरह वगैरह, मतलब जो न्यूज़ एनालिसिस आता है यूट्यूब पे, वो रेफर कर सकते हैं? यार न्यूज़ एनालिसिस रेफर आई वुड सजेस्ट कि जब आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन उसके 1 महीने तक ही करो। उसके बाद उसका पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि देन आपका जो थिंकिंग है फिर आप अपने हिसाब से नहीं सोच पाओगे। द पॉइंट इज कि न्यूज़पेपर का जो अल्टीमेट यूटिलिटी है वो आपका एनालिटिकल माइंड डेवलप करने के लिए, मतलब करंट अफेयर्स वगैरह होता रहेगा, बट आपको एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जामिनेशन मेंस में आपको प्रोज लिखने, कॉन्स लिखने और सजेशंस लिखने हैं। वो एनालिटिकल माइंड आपका खुद से पढ़ने से होगा, जब आप खुद थॉट दोगे एक एडिटोरियल पढ़ के। अब आप उसका एनालिसिस देखोगे तो वो इनिशियली 1-1.5 महीने में हेल्पफुल है क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं होता। उसके बाद आप पढ़ोगे तो फिर आपकी खुद की थिंकिंग है वो बहुत इनोवेट मतलब हो जाएगी, और फिर आप खुद से सोचना बंद कर दोगे, और जो सामने जो बंदा पढ़ा रहा है आप उसके हिसाब से सोचने लग जाओगे। तो आई वुड नॉट रिकमेंड इट कि मतलब वो आप आफ्टर 2-3 मंथ्स ये चीज करो,
और अगर इनिशियली आप अभी जैसे नए हो तो 1-2 महीने आप कर सकते हो उसको, बट आफ्टर दैट आपको खुद को न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना चाहिए। सर व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड द GS4? GS4 ठीक है, देखो GS4 में ऐसा है, सबसे पहले सिलेबस उठाओ, उसके कीवर्ड्स मेंशन्ड है, हर कीवर्ड्स जैसे वैल्यूज है, अकाउंटेबिलिटी है, वर्क कल्चर है, हर कीवर्ड पे एटलीस्ट यू नीड टू हैव 250 to 300 वर्ड्स का कंटेंट। अब कंटेंट में क्या होगा, डेफिनेशन, वर्क कल्चर क्या क्या डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया में क्या सिनेरियो है, और यू कैन कोट एग्जांपल्स एज वेल। जैसे गुड वर्क कल्चर का एग्जांपल में आप टाटा का एग्जांपल दे सकते हो, इन्फोसिस का एग्जांपल दे सकते हो, कैसे अच्छे वर्क कल्चर से एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, ये एग्जांपल से समझा दिया है। बाकी व्हाट मी एंड माय फ्रेंड डिड वाज कि हमने एक टेबल बनाई थी, तो टेबल में हर कीवर्ड का डेफिनेशन, पर्सनल एग्जांपल उससे रिलेटेड कुछ हो, एंड प्रोफेशनल एग्जांपल एंड इट्स यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन। दैट वाज द बेसिक अप्रोच। ऐसी कुछ मैंने किताब फॉलो नहीं की थी। आई यूज्ड डिकोड एथिक्स बाय मुदित जैन सर, वो काफी एग्जांपल्स यूज करते हैं फ्रॉम माइथोलॉजी। आप अगर महाभारत और रामायण से कई सारे एग्जांपल्स कोट करोगे, क्योंकि उसमें एथिक्स की बहुत सारी टीचिंग्स है, सो दैट वुड बी आल्सो हेल्पफुल। बाकी आई वुड बी अपलोडिंग माय नोट्स एज वेल ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, जिसका मैं लिंक लास्ट में दे दूंगा, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। तो दैट वाज द बेसिक अप्रोच ऑफ GS4 एथिक्स। सर ऐसे राइटिंग को थोड़ा सा ब्रीफ कर देते तो। किस पे, कैन यू रिपीट? ऐसे राइटिंग। ऐसे, अच्छा यार देखो, ऐसे अभी बता देता हूँ कि बहुत लोग लास्ट तक ही होता था कि GS से रिलेटेड टॉपिक्स आते थे, बट इस बार यू वुड हैव नोटिस्ड कि फिलोसॉफिकल एसेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। जो पार्ट 1 पूरा था वो फिलोसॉफिकल एसेज का था, तो ऐसे की आपको एक अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सबसे पहले आपको आपका फ्लो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे के अंदर, आप किस फ्लो में लिख रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर डिफरेंट वेज टू स्टार्ट एन ऐसे एज वेल। सो मेरा जो फोर्टे था वो था कि एनेक्डोट से स्टार्ट करना है, कोई भी एक स्टोरी से, आइदर इट कैन बी पर्सनल स्टोरी या फिर जो भी है, मतलब लाइफ से एग्जांपल भी ले सकते हो। सो फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन ऑन द लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन में मैंने स्टार्ट गांधी जी वाले एग्जांपल से किया था। एंड आप बहुत सारी पोएम्स यूज कर सकते हो, बहुत सारे कोट्स यूज कर सकते हो। तो बेसिक अप्रोच इज कि आप जो कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, अभी आपने काफी आप GS पढ़ लिया होगा, तो कोई भी टॉपिक उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल वाटर इश्यूज टॉपिक है, तो उस वाटर इश्यूज पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए 15-20 मिनट, उसका पूरा देखिए कि वाटर इश्यूज क्या है, क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या एग्जांपल्स है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस। ये सब आपको देखना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एसेज इज कि आपको अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना और जितने डायमेंशंस कवर कर सकते हो। एक वो अप्रोच होती है कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, जितने भी इन्वायरमेंटल, जितने भी डायमेंशन कवर कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो वन अप्रोच। इन फिलोसॉफिकल एसेज आपको थोड़ा डीप जाना पड़ता है, तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि थोड़े जो फिलोसॉफिकल एसेज है उस पर भी ध्यान दो, क्योंकि नाउ जो चेंजिंग पैटर्न है, ट्रेंड है UPSC का, वो काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं फिलोसॉफिकल एसेज पे, तो उस पे भी आप थॉट दे सकते हो। एंड GS4 का जो आप जो पढ़ोगे सिलेबस, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल इन एसेज एज वेल। सो दैट इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ essay. So what is your strategy towards the self evaluation of the answers? So for the students those are not taking the GS classes, वो अपने आंसर्स मेंस के आंसर्स को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं? सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे हो सकता है? देखो IS बाबा का जो मैंने TLP प्लेटफॉर्म बताया, दे पुट अप मॉडल आंसर्स ऑन देम। तो आपने जो आंसर लिखा आप अपने मॉडल आंसर से कंपेयर करिए, और ये कभी मत सोचना कि आपका 100%, इवन 60-70% भी मैच नहीं करेगा। इफ इट इज मैचिंग 40 to 50% भी ना, तो आपका आंसर काफी अच्छा है। तो एक तो वो है। बाकी आप जितने आंसर्स लिखोगे, या तो अपने फ्रेंड्स को दिखा दो, वो भी एक तरीका है। बाकी आप 40-50 आंसर्स लिख लोगे तो उसके बाद अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका आंसर किस डायरेक्शन में है, अच्छा है या बुरा है। तो एक ये अप्रोच थी, मतलब क्योंकि मैंने इसीलिए TLP प्लेटफॉर्म यूज किया था, बिकॉज उस पे वो मॉडल आंसर्स पुट अप करते हैं हर बार, तो आपको एक स्टैंडर्ड या बेंचमार्क मिल जाता है कंपेयर करने के लिए। सो दैट कैन बी डन इन दैट। हेलो सर, ने केस स्टडीज को पेपर किया GS4 के लिए। यार क्लियर नहीं है आवाज किसी की। केस स्टडीज, राइट? GS4 केस स्टडीज ठीक है यार। केस स्टडीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। इस बार यू वुड हैव नोटिस कि केस स्टडीज 1.5 पेज की लंबी थी,
तो 2-3 मिनट तो केस स्टडी पढ़ने में ही लग गया था लोगों को, और बहुत लोग थे जिनका GS4 का पेपर छूटा था। सो माय अप्रोच वाज कि मैं स्टार्टिंग केस स्टडी से करूं, ताकि जो केस स्टडीज वाला पार्ट है वो खत्म हो जाए, क्योंकि हर केस स्टडी 20 नंबर की होती है, देन यू कैन मूव ऑन टू 10 मार्कर्स वाला। तो केस स्टडी का बेसिक एक अप्रोच ये रहता है कि जो भी केस है उसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करते हो 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन। सो इफ इट इज रिलेटेड टू सम GS का कोई भी टॉपिक तो आप डेटा दे सकते हो, यू कैन पुट अप रिपोर्ट। देन देयर इज कि आप स्टेक होल्डर्स बताओगे कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है, सोसाइटी में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो है। देन देयर कम्स एथिकल डिलेमास। तो कुछ एथिकल डिलेमास होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, तो 15-20 एथिकल डिलेमास की लिस्ट बना लो अपने पेज के ऊपर और उन्हें रट लो अच्छे से। आप कोई भी केस स्टडी देखोगे उसमें आप 7-8 तो ऐसे ही डाल दोगे, मतलब क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो एथिकल डिलेमास आप उसमें डाल दोगे, ठीक है। वो मैं अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने लिस्ट बनाई थी प्रॉपर एथिकल डिलेमास की। देन उसमें होता है कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, तो आपका जो जजमेंट होता है दैट शुड रिफ्लेक्ट कि आपकी जो मेंटेलिटी है दैट इज ऑफ ए सिविल सर्वेंट, ठीक है। आपको ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन लेना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, मोस्ट एफिशिएंट हो और जो एथिकल वैल्यूज पे भी हो। तो आप सिलेबस जो एथिक्स का पढ़ेंगे वो जो वैल्यूज हैं सिलेबस के अंदर मेंशन्ड कीवर्ड्स में, that should be reflected in your case studies as well, like objectivity, accountability, honesty, transparency, ये सब। तो ये सब आपको अपने कोर्स ऑफ एक्शन में लिखना है, ठीक है। देन जो एग्जांपल्स फ्रॉम महाभारत एंड रामायण दे आर ऑलवेज एप्लीकेबल, वो आप अपने केस स्टडीज में डालिए, और जो एग्जांपल आप हमेशा यूज करते हैं वो डाल सकते हैं, कोट्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो काफी क्रिएटिविटी का स्कोप है इन केस स्टडीज। सो ये बेसिक अप्रोच था केस स्टडीज के अंदर। एंड द आइडिया शुड बी कि आप केस स्टडी एकदम बैलेंस्ड वे में लिखें, और लास्ट में जब आपको जजमेंट लेना हो तो आप जजमेंट लीजिए उस पे, उसको बीच में कहीं मत छोड़िए, नहीं तो फिर मतलब इट कैन गो बोथ वेज। तो बेसिक अप्रोच ये था केस स्टडी का। Sir, good morning. Sir, I want to ask about the sources for the anthropology. So, sir, basically for one thing we refer one source, but जैसे कि कुछ अगर उसमें enhance करना होता है, validation करना होता है, तो हमें extra sources refer करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो सर उनका selection कैसे करना चाहिए? ठीक है, देखो यार, कुछ तो बेसिक रिसोर्सेज होंगे दैट यू वुड बी रेफरिंग, मैं वो मेंशन कर देता हूँ। सो अक्षत जैन सर वाली किताब है वो तो आप पढ़िए, वो बहुत अच्छी किताब है, उसको आई वुड से कवर बाय कवर ही पढ़ लो, क्योंकि काफी अच्छा कंटेंट है उसके अंदर। और ये मत सोचना कि अब सब लोग ही पढ़ेंगे तो फिर मेरे पढ़ने का क्या पॉइंट है, आपको उसके ऊपर और वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान में रखना कि सिर्फ उसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पर वो पढ़िए आप, वो बहुत अच्छी है। सेकंड, demystifycac.in करके एक वेबसाइट है जिसपे वर्णित नेगी सर ने अपने नोट्स डाले हैं, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं, तो वो भी काफी अच्छे नोट्स हैं। सचिन गुप्ता सर के नोट्स हैं ही मार्केट में अवेलेबल, और आपके पास भी होंगे, वो भी कर सकते हैं। तो ये कुछ रिसोर्सेज थे जो आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आप रिसोर्स ऐसे कुछ रिजिड मत रखिए, आप अपने टॉपिक के हिसाब से करिए। सो सिलेबस में कीवर्ड देखिए, वो कीवर्ड आप, और एटलीस्ट हर कीवर्ड को गूगल तो हर बार ही करिए, गूगल पे आपको इतने सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां से आप लिख सकते हो। और आपको करना अंत में ये कि आपको उस कीवर्ड के ऊपर अच्छा सा कंटेंट तैयार करना है, 250, 300 या 400 वर्ड्स का, और वो निचोड़ होना चाहिए 3-4 रिसोर्सेज का। तो रादर देन हैविंग ए फिक्स रिजिड जो भी बुक लिस्ट है, आपको सिलेबस के हिसाब से चलना और उस हिसाब से नोट्स बनाने अपने। तो ये अप्रोच रखिए उसके अंदर। सर आपने साइट का नाम क्या बोला सर? www.demystifycac.in। वर्णित नेगी सर के नोट्स है, तो वो गूगल पे टाइप करोगे तो आ जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी नोट्स करके। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एंथ्रोपोलॉजी के रिगार्डिंग था क्वेश्चन। सर अपने जो नोट्स बनने चाहिए वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स में बनने चाहिए कि जैसे एक आइडियल आंसर होता है वैसे बना ले, फिर बाद में अपन वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उसमें, या सर नोट्स एक इंफॉर्मेशन फॉर्म में बनाए कि बाद में उसके आंसर्स लिख सके ऐसे? यार आई वुड से कि हमेशा आंसर के फॉर्म में बनाइए, क्योंकि आप उसको रिवाइज, ऐसा होता है कि पेपर के अंदर हम जब आंसर लिख रहे होते हैं तो अपनी पिक्टोरियल मेमोरी होती है, तो जब आप रिकॉल कर रहे होगे तो आपको वो पेज याद आने लग जाएगा। तो आपके आंसर्स भी, आपका जो नोट्स है वो आंसर की तरह होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज पे आप बना रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग आप डेफिनेशन से दो, शायद कैथरीन गर्ग की डेफिनेशन, राइट सर, उसकी डेफिनेशन अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो लिखो अपने नोट्स में, फीचर्स लिखो, बाकी थिंकर्स की क्या राय है उसके ऊपर, उसका प्रेजेंट डे रेलेवेंस क्या है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको आंसर के फॉर्मेट में लिखिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसी को रिवाइज करके आपको वही रिफ्लेक्ट करना है अपने एक्चुअल मेंस के अंदर, तो वो बेस्ट अप्रोच होगी। बाकी आप उसमें वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं। हेलो सर, क्लास के दौरान नोट्स बनाते हैं सर, वो इनफ है या फिर जब क्लासेस हमारी क्लासेस जब ओवर हो जाएंगी
उसके बाद उसमें हम लोग वैल्यू एडिशन करें या फिर हम जो पूरा नोट्स है वो खुद से ही बनाए? यार आई वुड सजेस्ट कि क्लासेस खत्म होने के बाद भी खुद से एफर्ट देना तो हमेशा ही जरूरी है, ठीक है। तो ये मत रखना कि मतलब मैंने बस इतना पढ़ लिया है तो इतने से सफाइज हो जाएगा। और भी रिसोर्सेज आप देखिए। अपने बेसिकली पॉइंट इज कि आपको आपका आंसर बाकियों से अच्छा होना चाहिए, और बाकियों से अच्छा जब होगा जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन कर रहे होंगे। आप कोई भी रिसोर्सेज बाकी टॉपर्स के नोट्स देखिए, क्योंकि सबके नोट्स अलग अलग होंगे। आपको बस वो चुन के अपने देखिए, नोट्स हमेशा अपने ही बनाना, ताकि आपके नोट्स बाकी सबके नोट्स का निचोड़ हो। लास्ट में आपको वही रिवाइज करना है, और आप अपने नोट्स में लगातार वैल्यू एडिशन करते रहिए। और किसी ऐसे मत रखिए कि बस मैंने आंसर राइटिंग कर लिए, मेरा हो गया है। हमेशा स्कोप रहेगा। इवन आफ्टर प्रीलिम्स भी आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप मेरा आंसर और अच्छा कैसे हो सकता है। उसमें डायग्राम्स डाल सकते हैं, जैसे स्पाइडर डायग्राम तो हर जगह यूज हो सकता है। तो आप हमेशा सोचते रहिए कि मैं इस आंसर को कैसे बढ़िया कर सकता हूँ। अब बीट केस स्टडीज हो गई या फिर कई वेरियस एग्जाम्पल्स हो गए। सो फॉर एग्जाम्पल सचिन गुप्ता सर का मैंने टॉक देखा था वैद सर के साथ, तो उन्होंने डिफ्यूजनिज्म जो है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में, उसका एग्जाम्पल बढ़िया से व्हाट्सएप का एक एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया था। तो वो काफी इनोवेटिव है, मतलब इन अ वे, क्योंकि एग्जामिनर उसको पढ़ेगा तो दिखेगा कि हाँ काफी अच्छा अप्रोच है ये। तो ऐसी चीजों को आप खुद से भी सोचिए और खुद से वैल्यू एडिशन करिए, ताकि आपका आंसर बहुत अच्छा रहे। Hello, sir. Hello. Okay. Yeah, good morning, sir. As you mentioned earlier about quoting budget and tribal answers, so exactly how should we know that we need to get this data from the newspaper, or we need to quote this data in this answer? It's really difficult to figure it out. No, you will get it after writing some of the answers. So suppose there is a question on tribal subplan. So initially you might not be aware of the budget or the outlay that has been given by the government. But once you will write 15 to, I would say 50 to 60 answers, then you will easily figure yourself out that how can I make this answer more better. So for example, suppose you have written an answer on tribal health and you are self-evaluating it. So just give a thought that how this answer can be made more good. So you can use, and always keep this habit in your mind whenever you are writing an answer. Just keep a board in front of you and write 2-3 points that you would be implementing in that paper or that answers. So first point, you can write that I would be adding at least one diagram. I would be adding at least one quote. So in your conscious mind, you'll have to prepare your conscious mind to use those quotes and diagrams. So that's why I was saying that you should use them in your notes itself. So when you revise them and when you are writing your answer in your actual paper, you would automatically remember that I have to write this in that answer. So that thing will come only after you have written various good answers. सर आपका ये इकोनॉमी को लेके क्या स्ट्रेटजी था? देखो यार, इकोनॉमी का ऐसा था कि मैंने कॉलेज के अंदर आई वॉच मृणाल सर के जो वीडियोस थे यूट्यूब पे, तो उससे बेसिक्स जो कंसेप्ट वाला था वो पूरा हो गया। बाकी आप प्री का बारे में पूछ रहे हैं या मेंस के बारे में पूछ रहे हैं? सर दोनों। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए मृणाल सर का मोर देन सफिशिएंट है। उसके साथ में मैंने विभास सर जो है बाजीराम के, उनके नोट्स यूज किए थे। उनके काफी डिटेल में नोट्स थे। साथ में आप कोई भी एक किताब कर सकते हैं, जैसे श्रीराम सर वाली किताब है वो आप कर लीजिए इकोनॉमी के लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी आप सिलेबस के हिसाब से चलिए। कीवर्ड्स मेंशन है, जैसे एग्रीकल्चर इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड, तो आप उस एग्रीकल्चर पे 360 डिग्री नोट्स बना लीजिए अपने। हर चीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, लाइक फॉरवर्ड लिंकेज है, बैकवर्ड लिंकेज है, तो बैकवर्ड लिंकेज में जैसे एग्रीकल्चर में सीड होगा, इनपुट्स होंगे वेरियस, इन फॉरवर्ड लिंकेज देयर वुड बी मार्केट रिफॉर्म्स। आप कैसे कैसे और बढ़िया से अपना जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसको कैसे बढ़िया कर सकते हैं। तो आप बेसिक अप्रोच इज आप सिलेबस को सामने रखिए, उसके कीवर्ड को अपने नोट्स में लिखिए और उसके ऊपर आप एकदम 360 डिग्री नोट्स बना लीजिए एकदम डिटेल में। उसके लिए आप ये रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, जैसे श्रीराम सर वाली किताब है। एंड द बेस्ट रिसोर्स इज ऑलवेज इंटरनेट। आप कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे को नहीं आ रहा, तो XYZ टॉपिक लिखिए, उसके आगे UPSC डाल दीजिए, इतने कोचिंग के एनालिसिस आ जाएंगे, उससे अपने नोट्स बना लीजिए, फिर आपको आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेन से आपका रिवीजन को लेके क्या स्ट्रेटजी था सर? यार रिवीजन देखो ऐसा कर लो कि एटलीस्ट संडे को रिवाइज कर लो जो हफ्ते भर पढ़ रहे हैं। डेली तो आई गेस नहीं हो पाता था मेरे से, संडे को कर लो एंड देन मंथली कर सकते हो उसको। एंड एंथ्रोपोलॉजी में खासकर ये ध्यान रखना कि
तुम्हें लगेगा कि हाँ तुमने कर लिया है, बट तुम्हें वो 6-7 इवन 10 से ज्यादा बार भी पढ़नी पड़ सकती है रिटेन करने के लिए। डोमिनेंट कास्ट की जो किताब है उन्होंने बोले डोमिनेंट कास्ट ऑफ रामपुरा, जो प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास की है, तो हो सकता है आपको बुक्स याद ना हो इनिशियली, बट अगर आपको बुक्स पता है और आप बुक्स कोट कर रहे हो तो दैट इज वेरी गुड, मतलब आपका आंसर और अच्छा है। तो उसके लिए आपको बहुत रिवीजन करना पड़ेगा। एंड एक बेसिक अप्रोच ये रख सकते हो कि वीकली आपने एक बार रिवाइज कर लिया हो, देन मंथली रिवाइज कर लिया हो, और उसके बाद आप डेडिकेटेडली पूरा कोर्स के हिसाब से वैसा आप अपना प्लान आउट कर सकते हो। सर जैसे हम जीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो विजन से कर रहे हैं अगर, तो हमको स्टडी मटेरियल उसका ही कंसाइज करके रखना चाहिए कि बाकी बुक्स भी रेफर करनी चाहिए? देखो यार, ऐसा कुछ बुक के हिसाब से मत चलो कभी भी। कुछ बेसिक बुक्स है जैसे स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी है लक्ष्मीकांत की, वो तो आप पढ़ लीजिए, उनके तो नोट्स बनाने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि फिर आप एक और ही किताब बना दोगे, ठीक है, और वो टाइम वेस्ट होगा, उतने में आपका 5-6 बार रिवीजन भी हो जाएगा। द पॉइंट इज आपको सिलेबस कवर करना है, इट डजंट मैटर कि आप कहाँ से कर रहे हैं, अगर आपको विजन से वो मटेरियल मिल गया है तो आपका वो टॉपिक पूरा कवर हो गया है, ठीक है। तो वो टॉपिक के हिसाब से आप जाइए, बाकी रिसोर्सेज भी रेफर कीजिए, बट अंत में अपने एक नोट्स बना लीजिए प्रिसाइज, ताकि पेपर से पहले आप उसको रिवाइज कर पाए। तो पेपर से पहले टाइम नहीं मिलेगा आपको पूरी किताब पढ़ने के लिए, सो ये अप्रोच रखिए। जो लक्ष्मीकांत और जो हिस्ट्री होती है जीएस में, उसमें बुक्स पढ़ने के बाद उसके नोट्स मतलब एफिशिएंटली कैसे बनाए, क्योंकि पूरे लक्ष्मीकांत के तो नहीं बना सकते, तो वो कैसे आपने किया था? यार देखो, हमारे केस में ऐसा था कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने नोट्स बना लिए थे प्रीलिम्स के, तो मैंने तो उसके ही फॉलो किए थे, मैंने प्रीलिम्स के अपने नोट्स नहीं बनाए थे कुछ भी। बट ऐसा था कि स्पेक्ट्रम में जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, तो प्रीलिम्स के नोट्स हिसाब से बना सकते हो आप, कि जो पीछे टेबल है स्पेक्ट्रम के, गवर्नर जनरल्स के हिसाब से टेबल है, एंड जो पब्लिकेशंस है महान महान व्यक्तियों की, वो आप लिख लीजिए, और जो वेरियस एक्ट्स है लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1918 एक्ट है या फिर 19 एक्ट है, जो भी है, उसके आप फीचर्स लिख लीजिए स्पेसिफिक, जो आपको लगता है प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है, तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है और उनके फाउंडर्स है, उनके नोट्स उस हिसाब से बना लीजिए ऑब्जेक्टिवली। सो दैट शुड बी योर अप्रोच रिगार्डिंग द नोट्स। बाकी लक्ष्मीकांत के नोट्स मत बनाना, उसके नोट्स नहीं बनेंगे कभी अच्छे से। और मेंस तक सर आपके नोट्स में कितने क्वेश्चंस इंक्लूड हो चुके थे? यार मैं समझा, क्वेश्चन नहीं समझा ये। सर एंथ्रो के नोट्स में कितने क्वेश्चंस इंक्लूड हो चुके थे? यार अब ये काउंट करना तो मुश्किल है मेरे हिसाब से, बाकी होंगे यार, जनरली मैं पूछ रहा हूँ सर। होगा भाई 350 to 400 प्लस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नहीं मतलब अगर हाँ उसको क्वेश्चंस मान के चलो तो उतने होंगे मेरे हिसाब से। सर मेनी कांग्रेचुलेशंस। एक सवाल सर ये था कि जो मेंस में जब हम आंसर राइटिंग करते हैं फॉर एनी सब्जेक्ट, तो जब भी जनरली जो क्वेश्चन का ट्रेंड भी है और जो चीजें हमसे एक्सपेक्टेड है वो ये है कि मल्टी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, हमारी होलिस्टिक हो। तो जब हम उसे लिख रहे हैं सवाल को, तो हम किस तरीके से एक फ्लो और कंटिन्यूटी एक आंसर में बना सकें, सो दैट जो पैराग्राफ की इंटरकनेक्टेडनेस है, जो छोटी छोटी चीजें जो आधा एक नंबर ज्यादा दिला सकती है। तो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर राइटिंग पैराग्राफ में आई वुड नॉट रिकमेंड, आप पॉइंट्स में लिखिए। उसके 2 रीजंस है। फर्स्टली आपके लिए बहुत आसान होगा, और पैराग्राफ पॉइंट्स में आप लिखते हो तो वो क्वांटिटी वाइज भी ज्यादा लगता है, और एग्जामिनर के लिए भी इजी होता है पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। और पॉइंट्स में आपको बहुत क्रिएटिविटी है लिखने की। पैराग्राफ में मान लीजिए आपके पास 2 लाइन का ही पॉइंट है, बट आप उसको पैराग्राफ में जानबूझ के बढ़ाए जा रहे हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड इन पैराग्राफ में आप लिखिए। सेकंड, इंटरकनेक्ट कैसे करना है वो आपको, जब आप चारों पेपर का सिलेबस कवर करेंगे तो यू विल रियलाइज कि कौन सा टॉपिक इंटरकनेक्शंस बन रहा है। एंड इट इज ऑलवेज गुड टू add as much as dimension as you can, जो जैसे सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल जितने आप डायमेंशंस ऐड कर सकते हो, वो आपको आफ्टर राइटिंग, मैं वही बोल रहा हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको अल्टीमेटली रियलाइज हो जाएगा कि आपको कैसे इनपुट डालना है उसके अंदर। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले लिखिए कुछ आंसर्स, उसके बाद आपको अपना आप लगने लग जाएगा कि हाँ इस जगह पे ये चीज भी आ सकती है, और वो कॉन्शियस माइंड में भी आप ध्यान में रखिए कि मैं अक्रॉस जीएस पेपर कैसे दूसरे कंसेप्ट्स का यूज ले सकता हूँ, ऑल्सो एंथ्रोपोलॉजी में भी पेपर 1 का यूज कैसे पेपर 2 में ले सकता हूँ, या फिर अदर वे अराउंड। तो वो इनोवेटिव भी लगता है और काफी वैसा भी है, अच्छा भी चीज है ये, ताकि एप्लीकेटिव आपका जो आंसर है उसमें एप्लीकेशन भी दिखेगा बेसिकली। सर जैसा कि आपने कहा कि सर मुझे
पूछना था कि जैसे अपन टेस्ट सीरीज देते हैं, मतलब शुरू में जैसे टेस्ट सीरीज दी होगी आपने भी, तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद भी कई दफा ऐसा होता है, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज दी थी तो 20 आउट ऑफ 17 क्वेश्चन आई वाज कैपेबल टू डू, बट सर 3 क्वेश्चन ऐसे थे मुझे लगा ही नहीं कि मैंने एक स्टैंडर्ड बुक्स में कभी पढ़ाई है, तो सर पर्सनली मैं काफी डिमोरलाइज हो जाता हूँ उससे। तो सर उस टाइम पे आपने क्या किया था? देखो ये हमेशा ही होगा, ये आप है ना जब मेंस लिख दोगे उसके बाद भी होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, पर्शियन लिटरेचर का क्वेश्चन था एक GS1 में, अगर आपने देखा हो लास्ट ईयर, वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से किसी को नहीं आता था, कुछ हिस्ट्री ऑप्शन वाले लोगों को भी नहीं आता था। तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है, यूपीएससी में है ही ऐसा, प्रीलिम्स में आपको कहाँ 100 में से 100 क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन, मतलब यही नहीं कह रहा मैं मेंस में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हमें जितना पता है उसके बारे में आप लिख दीजिए। तो इसमें बेस्ट अप्रोच इज कि वो जो क्वेश्चन है उसको आप 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, काट दो उसको 3-4 पार्ट्स में, और जिस जिस पार्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो जो बीट अराउंड द बुश वाली बात होती है वो करके एटलीस्ट 2-3 नंबर लेके आ जाओ उसमें। और ये कभी नहीं होगा ऐसा कि आपका 100% कवर हो गया है सिलेबस और आपके बहुत सारे सरप्राइजिंग क्वेश्चंस भी होंगे। जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं और उस पर 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया GS3 के अंदर, जो कि लिखना बहुत मुश्किल काम था। मेरे मुश्किल से 2 पेज भरे थे, पर मैंने तीसरे पेज में जबरदस्ती चैलेंजेस भी डाल दिया, चैलेंजेस इन जनरल एयर पॉल्यूशन। तो मैंने इन जनरल नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तो 1.5 पेज का ही लिखा, पर मैंने एयर पॉल्यूशन को कैसे, चैलेंजेस को कैसे, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या सजेशन है, उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं, उसमें 1.5 पेज और भर दिया। तो इट इज ऑल अबाउट कि आप उसमें कैसे मतलब मैनेज कर सकते हो, और वो आपका धीरे धीरे आ जाएगा, बस उसमें कुछ ना कुछ लिखने का कोशिश करते रहिए। सर जब आपने नोट्स रेडी किए क्वेश्चंस फॉर्म में, आपने कहा जैसे 350 प्लस क्वेश्चंस हुए, तो सर आप मतलब सिर्फ जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन दिए जाते हैं सिर्फ आपके नोट्स में वही क्वेश्चंस थे, या टाइम के साथ आपने न्यू क्वेश्चंस कैसे डेवलप किए? देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो जो सर क्वेश्चंस देते हैं उस पे आंसर्स लिख लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें आपको लगे कि कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जा रहा है तो उस पे आप लिख लीजिए। उसके बाद जो सिलेबस में कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको लग रहा है कि आपके पास नोट्स नहीं है, उस पे आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, या फिर उसके बाद आप टेस्ट भी देंगे बहुत सारे, तो टेस्ट के भी क्वेश्चंस आप अपने नोट्स में डाल सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके आपके बढ़ते रहेंगे, तो ये अप्रोच रखिए। बाकी ऐसा है कि हमेशा प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए। जैसे नर्मदा मैन वापस आ गया इस साल, और वो हर साल या तो नर्मदा मैन आता है या फिर एक और कुछ है, वो रिपीट होता रहता है हर साल। तो ऐसी चीज को भी आप एनालाइज कीजिए और ऐसे क्वेश्चंस पे स्टार मार्क मार दीजिए जिसको आपको लगता है विच आर हाईली प्रोबेबल। तो मैंने भी कुछ क्वेश्चंस पे, जैसे नर्मदा मैन मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्योंकि मेरे को पता था वो या तो 15 नंबर में आएगा या 10 नंबर में आएगा, क्योंकि एक ट्रेंड वैसा था कि वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन उसके। तो ये अप्रोच रखिए आप। बाकी द मेन फोकस शुड बी कि आपका सिलेबस है वो हर कीवर्ड आपके पास कंटेंट होना चाहिए और वो कवर्ड होना चाहिए अच्छे से। सर जैसे कि सर ने हमें शुरू में ही बताया था कि एग्जाम में हमारे पास सोचने का वक्त नहीं होगा, इसीलिए हमें क्वेश्चंस फॉर्म में ही अपने नोट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन कुछ भी इससे आउट आ जाए, मतलब जिसे हमने क्वेश्चन फॉर्म में प्रिपेयर नहीं किया है, तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करें एग्जाम सिचुएशन में? देखो वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको डील करना पड़ेगा। तो उसमें द बेसिक अप्रोच इज कि जो जो आपके पास कंटेंट है, जितना आपको पता है उतना आपको इंटर रिलेट करके उस क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। अब मैं शायद एग्जांपल के तौर पे कुछ एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी करके क्वेश्चन आया था, मेरे को नहीं पता था क्या होता है वो, मैंने पहली बार टर्म सुना था, तो मेरे को जितना एथनोग्राफी पता था मैंने वो लिख दिया। अब पता नहीं उसमें कितने नंबर दिए होंगे उन्होंने। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, और पेपर इसीलिए, जैसे नतूफियन भी बहुत लोगों को नहीं पता था, तो वो आपको उसी टाइम अपना दिमाग लगाना है कि वो सबसे नियरेस्ट किस टॉपिक से मेल खाता है, और उससे जितना पता है आप वो सब लिख दीजिए। ठीक है, एक ये अप्रोच रख सकते हैं आप। दूसरा एक कुछ और क्वेश्चन आए जो एप्लीकेशन है किसी टॉपिक का, तो उस पे आपके पास नॉलेज पहले से है। जैसे वो क्वेश्चन था कि हाउ फेमिनिस्ट मूवमेंट इज इम्पैक्टिंग मैरिज एंड फैमिली, तो आपने मैरिज और फैमिली पढ़ा है, आपने फेमिनिस्ट मूवमेंट वाला भी पढ़ा है कि क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वो पूछा गया एक बार प्रीवियसली फैमिली वाले पार्ट में। तो आप उस पर लिख सकते हैं अच्छे से क्वेश्चन, आप उसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट पहले तो डिफाइन कर सकते हैं। इवन आप ये GS1 में भी पढ़ते हैं सोसाइटी के अंदर, तो इस तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं। वो उधर आपको, मैं वही कह रहा हूँ कि ये आपका आंसर राइटिंग से आएगा कि कैसे मैं डील करूं ऐसे क्वेश्चंस को, और उधर आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ विद इन बोथ पेपर्स। या फिर मैंने जो इवन आपका GS का नॉलेज भी आपके एंथ्रोपोलॉजी में बहुत काम आएगा, जैसे एथिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन है। तो और एक वो क्वेश्चन था कि हाउ लैंग्वेज यूसेज रिजल्ट्स इन सोशल इनइक्वालिटी, तो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने काफी ऑब्जर्व किए होंगे ऐसे एग्जांपल्स। तो हर बार अपने कोई केज में नहीं रहना, बेसिकली ये कह रहा हूं मैं।
थिंकिंग अपने को ओपन रहनी है और ओपन थिंकिंग रख के एग्जाम के अंदर जाना है कि एग्जाम्पल हम कहीं से भी और कहाँ से भी कोट कर सकते हैं। तो ये अप्रोच रखिए इसके अंदर। सर आपने एंशिएंट और मिडिवल को कैसे अप्रोच किया, कैसे कवर किया एंशिएंट और मिडिवल पार्ट? यार देखो, एंशिएंट और मिडिवियल का ये सीन था कि एंशिएंट और मिडिवियल आप पढ़ भी लेते हो ना तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं जो होते ही नहीं है पेपर में, पर उसको पढ़ना है, ऐसा छोड़ना नहीं है। तो एंशिएंट के लिए मैंने आर्य शर्मा थी वो पढ़ ली थी एक बार, और एक तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी आती है वो बहुत अच्छी है, वो आप रेफर कर सकते हैं। बाकी मिडिवियल के लिए मैंने कोई बाजीराम की एक रेड बुक आती है 60 पन्नों की, वो उससे बस नोट्स बना के मैंने पढ़ लिया था। एंड सिमिलर फॉर एंशिएंट के लिए भी मैंने बाजीराम की येलो बुक से नोट्स बना लिए थे और बस फिर उससे मैंने एंशिएंट कवर कर लिया। बाकी उसमें ऐसा होता है कि एंशिएंट और मिडिवियल का ये रहता है कि कुछ टर्म्स होते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि डैश 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 टर्म इज रिलेटेड टू विच थिंग, वो लैंड मेजरमेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसके भी कंपाइलेशन आते हैं बहुत सारी कोचिंग्स के। ये आइदर इट कैन बी जीएस स्कोर या इनसाइट्स आईएएस, तो वो कंपाइलेशन जो होता है नॉमेनक्लेचर की ये टर्म्स किससे रिलेटेड है, वो आप 2-3 पढ़ सकते हैं ताकि आपका अच्छे से, जैसे हमारे टाइम में आया था हुंडी करके था, वो एक टैक्स होता था या फिर कुछ तो होता था, बिल होता था, तो वो मेरे को पता था क्योंकि मैंने कंपाइलेशन में पढ़ा था किसी में। तो ये एक अप्रोच रख सकते हैं इसके अंदर आप। बाकी टाइमलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंशिएंट में आप टाइमलाइन बना लीजिए कि इंडिया में किस टाइम पे कौन सा एम्पायर था, ताकि आपका क्लैरिटी रहे, क्योंकि आजकल क्रोनोलॉजी बहुत पूछते हैं लोग कि कौन सा एम्पायर किस टाइम पे था। तो एंशिएंट में भी ये करिए और मिडिवियल में भी ये कर सकते हैं आप। हेलो सर। हेलो सर, आपने हेलो सेमी सोर्सेज यूज किए थे यार, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सर मैं कह रहा था आपने जैसे एंशिएंट और मिडिवल का बताया, तो आपने के लिए भी सेम सोर्स हाँ यार, मेंस और प्रीलिम्स के मेरे नोट सेम थे। कोचिंग मटेरियल एंड ऑल और रेफर द बुक। हाँ, मेरे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के नोट सेम थे फॉर बोथ हिस्ट्री, सारे हिस्ट्री। स्पेक्ट्रम थी, बहुत लोग बोलते हैं प्लास्टिक टू पार्टीशन पर मत पढ़ना, वो मतलब उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, मतलब उतना वैल्यू एडिशन नहीं है कुछ भी। स्पेक्ट्रम में जो आपने पढ़ा है वो आपको उसका एनालिसिस ही लिखना है। तो मेरे प्रीलिम्स और मेंस के स्पेशली हिस्ट्री के रिसोर्सेज सेम ही थे। हेलो सर। हेलो सर। हेलो जो सर करंट आर्ट एंड कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए? सर ये पूछ रहा है आर्ट एंड कल्चर कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए? यार ऐसा दिन का तो मैं बता नहीं सकता, बट मतलब ऐसा कि आर्ट एंड कल्चर का फाइन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी पढ़ लो, पर उससे पहले ओनली आईएएस करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पे 5 वीडियोस है जिसपे वो एनसीईआरटी पूरे एक दिन में करा देगा। तो आप वो 2x पे देख के पहले वो खत्म कर लो, क्योंकि सीधा आप एनसीईआरटी पे कूदोगे तो बहुत ऐसा है, मतलब बोर से हो जाओगे, नींद वगैरह आने लग जाएगी, बोरिंग सी एनसीईआरटी। तो पहले ओनली आईएएस का वो कर लीजिए कंपाइलेशन, वो 5 वीडियोस है, आपका रफली 3-4 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और फिर नितिन सिंघानिया में से सिलेक्टिवली कुछ टॉपिक कर लीजिए, वर्ड बाय वर्ड मत करना, नहीं तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कुछ टॉपिक जैसे पेंटिंग्स हो गया या फिर फोक डांसेस हो गए, ये सब प्रिपेयर कर लीजिए। एंड द बेस्ट अप्रोच इज कि एक श्रेयांश कुमार सर हैं, उनका भी एंथ्रोपोलॉजी था, उनके टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने मैप बना रखे हैं, तो फोक डांस कौन सी स्टेट का कहाँ पे है उसका मैप बना रखा है। और फिर मैंने भी मैंने उनके नोट से प्लस जो नितिन सिंघानिया सर के नोट से, उनके नोट से भी मैप्स बनाए थे, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो उसको थोड़ा रेफर कर लेना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आर्ट एंड कल्चर। पर आर्ट एंड कल्चर का बेसिक पार्ट इज कि जीएस 1 में सिलेबस देखोगे तो उसमें मेंशन है लिटरेचर एंड फिलोसफी करके, जिसपे इस बार डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। तो ऐसे कीवर्ड्स को आप मेंशन कीजिए कि लिटरेचर पे आप फोकस करें, कि लिटरेरी जितने भी सोर्सेज है उसका एक नोट तैयार कर लिया। और एक क्वेश्चन ये था कि हाउ डिफरेंट फिलोसफीज इम्पैक्टेड आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर कौन से टाइम का कौन सा था, जैसे मुगल का कौन सा था, एंशिएंट आर्किटेक्चर में क्या क्या था, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए उनका कौन सा आर्किटेक्चर था। तो इन सब पे नोट्स बनाइए। और इट इज बेटर टू ऐड डायग्राम्स, तो मैंने उसमें स्तूपा का डायग्राम बनाया था, तो वो एक वैल्यू एडिशन देता है आपके आंसर्स में। तो मैं वही कहूंगा कि अच्छे से डिकोड करिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को, यूपीएससी एंड सिलेबस को, यूपीएससी उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। सर इतने टायरिंग प्रोसेस में आपने अपने फिजिकल फिटनेस का कैसे ध्यान रखा था? यार ऐसा था कि लॉकडाउन में मेरे पापा टीटी खेलते हैं, तो हम लोग टीटी टेबल लेके आ गए थे, ऊपर वाले कमरे में हमने टीटी टेबल लगा ली थी, हम वो खेलते थे। तो जब टाइम पास नहीं हो रहा होता था, पढ़ाई का मन नहीं हो रहा था, तो मैं टीटी खेल लेता था पापा के साथ। तो
और मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि एटलीस्ट 1 घंटा दो यार शरीर को, सब लोग इतना बॉग डाउन मत हो जाओ पढ़ाई के अंदर, क्योंकि जो तुम्हारा मेंस होगा वो मेंटल एक्सरसाइज तो है ही प्लस फिजिकल एक्सरसाइज भी है, क्योंकि दिन में आपको 6 घंटे बैठना है और 6 घंटे बैठना भी और साथ में लिखना भी है, तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होती है उसमें। तो 1 घंटा खुद को दीजिए, जो जिम करता है या फिर वर्कआउट कर लीजिए या फिर भाग लीजिए। मेरे केस में मैं खेल लेता था टीटी, तो उस चीज का ध्यान रखिए। बाकी फ्रूट्स वगैरह खाइए, अच्छी डाइट रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जैसे हम लोग जीएस का आंसर लिखते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती हैं, तो सर उसमें क्रिटिसाइज करना सही होता है या प्रेज करना सही होता है या बैलेंस? यार देखो, क्रिटिसाइज नहीं करना होता, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक करके चीज होती है। कोई भी पॉलिसी है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, उनको एड्रेस करो, प्लस साथ ही में जो आपके सजेशंस होने चाहिए वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको जाके आप गवर्नमेंट का पार्ट बनने वाले हैं, आगे जाके आपको स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना है, तो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच दिखना चाहिए। टीवीएफ एस्पिरेंट्स देखा होगा सबने, है ना? तो उसमें बोलता है ना जैसे पॉजिटिव अप्रोच, वो लिटरली काफी इंपॉर्टेंट है बोथ इन मेंस और इंटरव्यू के अंदर, कि आपका जो भी आंसर है वो आपकी एक थोड़ा आपकी जो साइकोलॉजी है या फिर आपकी जो भी फिलॉसफी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो उसमें पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए कि आप कुछ भी चीज आपको, है ना, चैलेंजिंग से चैलेंजिंग चीज दे देंगे तो आप उसको पॉजिटिवली कैसे अच्छा बना सकते हो। तो इश्यूज और चैलेंजेस आपको एड्रेस करने हैं, बट वो इन अ वे बैलेंस्ड वे में रहने चाहिए हमेशा, और जो आपके सजेशंस होने चाहिए वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग होने चाहिए और बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमेशा ये अप्रोच रखो, और इट इज बेटर टू कोट डिफरेंट कमिटीज ताकि आपके आंसर की क्रेडिबिलिटी बढ़े। नीति आयोग की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, उसको आप करिए। और कई आप, एंड आई वुड आल्सो सजेस्ट कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की आप स्पीचेस देखिए, या फिर अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उनके आप एज इट इज जो वो है स्पीच है वो आप अपने आंसर्स में कोट करेंगे। मैंने कोट किए थे आईआर के आंसर्स में, तो वो क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है आपके आंसर्स की, बट मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से कोट करें। सर जैसे एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं अभी पेपर 1 में, फॉर एन एग्जांपल इज जॉइंट फैमिली डिसइंटीग्रेटिंग हो गया, तो इस पे बहुत सारे थिंकर्स पे मतलब डाइवर्जिंग ओपिनियंस होते हैं। तो सर अपने आंसर मतलब एक आइडियल आंसर में कि थिंकर्स के डाइवर्जिंग ओपिनियंस होने चाहिए या फिर कोई एक थिंकर को लेके उसके अपन सब्सटेंशिएट कर सकते हैं? सर अप्रोच क्या होगा इसका? यार देखो, इसका अप्रोच ही होना चाहिए कि आपको सारे थिंकर्स के सारे व्यू लिखने हैं। आप इसको एक वैसे लिख रहे हैं, नॉट मतलब आप इसको एक वैसे बैलेंस्ड वे में लिखिए कि एक थिंकर का क्या ओपिनियन है उसके ऊपर, क्योंकि हर बार ये होता है कि जरूरी नहीं है कि किसी एक थिंकर ने बोला है तो वो चीज सही है। आप स्टैटिस्टिक्स का यूज कीजिए, फिर उसको आप है ना एज अ बेस बना के उसको डिफेंड करिए कि वो कैसे टॉपिक हो सकता है। बट मैं बोलूंगा कि बोथ साइड्स दिखाइए, फिर कंक्लूजन थोड़ा बैलेंस्ड वे में लिखिए कि हाँ ये चेंजेस आ रहे हैं, कि जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि जॉइंट फैमिली डिसइंटीग्रेट हो रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे दिल्ली जैसे शहरों में फाइनेंशियल कंपल्शन की वजह से बहुत लोग जॉइंट फैमिली में वापस भी आ रहे हैं। तो एक अपना एक साइड से मत देखिए, उसको बहुत डिफरेंट साइड से देखिए और सारी साइड्स को एड्रेस कीजिए अपने आंसर में। और वही मैं जैसे कंक्लूजन बोल रहा हूं, तो कंक्लूजन भी आपका बहुत ज्यादा इंक्लूसिव टाइप होना चाहिए। तो ये अप्रोच होनी चाहिए बेसिकली। थैंक यू सर। सर इस बार प्रीलिम्स सर हमारा 5 जून को है, तो सर उससे कितने महीने पहले से हमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और कितने महीने पहले हमें मॉक देना चालू कर देना चाहिए? देखो, प्रीलिम्स स्पेसिफिक या प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव तुम्हें करना है फ्रॉम फरवरी से मेंस में छोड़ देना, बिकॉज उसमें टाइम लगता है प्रीलिम्स के अंदर। और मॉक्स मैं कहूंगा कि फरवरी से ही देना चालू कर दो एटलीस्ट। जब प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव रखो अपना, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4.5 महीना होगा आपके पास, तो मॉक्स आप दीजिए 1 हफ्ते में। और जब आपका 1.5 से 2 महीना बच जाए तो रोज आपको 1 मॉक देना है। मैंने दिया था रोज 1 मॉक, और एटलीस्ट 1 महीने पहले 9:30 से 11:30 की सिटिंग में देना है आपको, जो यूपीएससी का सिमुलेशन होता है। तो ये अप्रोच रखिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन, एंड सर मेंस के अंदर कैसे टाइम मैच करना है सर? जैसे जीएस 1 2 3 4 हो गया, उसके बीच का जो टाइम मिलता है तो वो हम कैसे मैनेज करेंगे? मतलब उसको प्रेशर और क्या दूसरी चीज अवॉइड करनी है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसे किया था कि एटलीस्ट तुम्हें 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे। हो सकता है वो 13-14 घंटे भी हो जाए। द सेकेंड थिंग इज कि मैंने ऐसा रखा था कि आधे दिन फिलोसफी, आधे दिन एंथ्रोपोलॉजी करूंगा ऑप्शनल,
और आधे दिन एक जीएस करूंगा। सो आई डिसाइडेड कि 10-10 दिन में एक एक जीएस को दे दूंगा, और अगर थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है तो 50 डेज में, रफली 50-60 डेज में मेरा जीएस का हो जाए और साथ में ऑप्शनल भी हो जाए। तो मेरा 50-50 का रहता था डेली का। सर आपका जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, पर आपको ऐसा लगा कि आपने मतलब इस अटेम्प्ट में भी कुछ गलतियां की हों जो आपने करेक्ट की हों, या कुछ और कर सकते थे, तो थोड़ा बता देंगे। यार गलतियां, यार मैं ऐसे ही बोलूंगा कि गलतियों तो नहीं, पर और जितने मॉक्स दे सकता हूँ मैं, मतलब मेरे को, मैंने एटलीस्ट देखो प्रीलिम्स के मैंने 100+ मॉक्स दिए थे, और मेंस के मैंने 40+ टेस्ट दिए थे, मॉक्स जो होते हैं। तो मैं वही कहूंगा कि और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। बाकी मतलब बाकी तो यही है, मतलब ऐसा कुछ खास वैसा पॉइंट नहीं है मेरे पास बोलने का। ठीक। हेलो सर। हेलो सर। हाँ सर। देवांश। नहीं आ रही आवाज। अंजलि तुम बोलो। सर आपने गवर्नेंस को कैसे तैयार किया था? ठीक है यार, गवर्नेंस के लिए मैं बताता हूँ कि एक आतिश माथुर सर है, वो पहले वाजीराम में फैकल्टी थे, वो अभी नेक्स्ट आईएएस में। उनकी वेबसाइट है www.atismathur.in होगी ऐसा करके। उनकी वेबसाइट पे उन्होंने GS2 के बहुत अच्छे नोट्स दिए हैं गवर्नेंस के, तो एक तो वो फॉलो कर लीजिए। सेकेंडली मैंने विजन आईएएस के जो नोट्स होते हैं उससे अब शॉर्ट नोट्स बना लिए थे गवर्नेंस के। सो ये 2 रिसोर्सेज थे। बाकी इंटरनेट तो आपको हर जगह यूज करना ही है। तो अब जैसे गवर्नेंस ही है तो गवर्नेंस यूपीएससी लिख दो आगे, तो आपके पास नोट्स आ जाएंगे बहुत सारे। तो उसमें बेसिकली डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम हैं, या फिर गवर्नेंस में सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स भी शायद उसी के अंदर पार्ट आता है, तो वो सब पे आप नोट्स बना लीजिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे किसी ने पूछा था ना कि करंट अफेयर्स में से कैसे आता है, मिशन कर्मयोगी वॉज इन न्यूज, 6 महीने से न्यूज में था वो। और क्वेश्चन क्या है कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स कैसे हो सकते हैं GS2 में ओवरऑल, तो इश्यूज को आइडेंटिफाई करो आप। तो मिशन कर्मयोगी से आपको पता लगना, जैसे हमें पता लग गया था कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स पे एक क्वेश्चन तो आने वाला है, तो हमने वैसे ही प्रिपेयर कर लिया था वो। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इश्यूज को। हेलो सर। लक्ष्मीकांत की जो गवर्नेंस वाली बुक है वो फ्रूटफुल है, उसको पढ़ना चाहिए, या फिर वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होगी हमारे लिए? यार मैंने पढ़ी नहीं है वो, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता उसके ऊपर, मैंने फॉलो। मेरा ख्याल है काफी हो गया भाई, सर ने कुछ छोड़ा तो है नहीं, आप लोगों ने भी कुछ नहीं छोड़ा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, आपने इंटरव्यू के लिए वो जो डिलेमा होता है उससे कैसे ओवरकम किया अपने आप को? कौन सा डिलेमा? सर इंटरव्यू में जो डिलेमा होता है, मतलब सर इंटरव्यू हॉल में जो प्रेशर होता है उसको आपने कैसे हैंडल किया? देखो यार, इंटरव्यू में ये रहता है कि जैसे मैं 22 साल का हूँ अभी, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं काफी एनर्जेटिक हूँ, काफी पैशनेट हूँ, तो वो सब चीज आपको दिखानी है। और बाकी कॉन्फिडेंस इज द की इंटरव्यू के लिए। आपका ओपिनियन किसी चीज पे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो यार, वो नर्व्स, एमिनेम के गाने सुन लो, लूज योरसेल्फ, उससे मोटिवेशन आ जाएगा थोड़ा पेपर एग्जामिनेशन हॉल से पहले। बाकी जो भी चीजें हैं, मतलब बाकी आपको रखना पड़ेगा थोड़ा, बस खुद को कॉन्फिडेंस दे के रखो कि। और बाकी आप जब अंदर जाओगे देन यू विल रियलाइज कि बोर्ड काफी कॉर्डियल होता है, वो आपको पूरा अच्छे से कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठाएंगे आराम से, और काफी अच्छे इनिशियली वो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके डेप से ही पूछेंगे जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है, तो धीरे धीरे वो बिल्डअप हो जाएगा आपका। तो उसको वो आपका हो जाएगा, वो एक बार आप मेंस कर लोगे ना तो अपना भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंटरव्यू का, तो वो तो कोई इशू नहीं है। देवांश पूछ रहा है व्हेन टू जॉइन फर्स्ट टेस्ट सीरीज। यार व्हेन टू ज्वाइन, मैं तो कहूंगा जितना अब जैसे हो गया टाइम तो कर लो अभी ज्वाइन, जितना जल्दी कर सको उतना। एटलीस्ट आपका कुछ कंटेंट तैयार हो ताकि आप जाके टेस्ट लिख सको। टेस्ट सीरीज कहाँ किया था आपने एंथ्रो को? यार मैंने सर के 2 टेस्ट दिए थे और मैंने L2A की टेस्ट सीरीज दी थी। हेलो सर। हेलो सर, जैसे कि मुझे थिंकर्स और थ्योरीज में मतलब बचपन से बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। आई थिंक जो अपना 9th-10th है तभी से पॉल साइंस की थ्योरीज आती हैं, ऐसे ही अब ये थ्योरीज एंथ्रो में भी आ गई। सर मुझे इसमें पर्सनली बहुत दिक्कत है, और जो सर की बुक है उसमें जो दे रखा है वहां से तो पढ़ने के बाद बस हो ही जाता है मेरा दिमाग। तो सर क्या किया जाए इसके लिए ताकि? यार देखो, थ्योरीज में मेरे को भी बहुत इनिशियली दिक्कत आई थी, स्पेशली जो स्ट्रक्चरलिज्म वाली है वो मेरे को अभी भी अच्छे से नहीं आती, सही बताऊं। ठीक है, तो उसमें ये कर सकते हो थ्योरीज में कि ईपीजी पाठशाला पे उन्होंने वीडियोस दे रखे हैं। जैसे जैसे ही सर का लेक्चर खत्म हो जाए
और सर की किताब तुमने एक बार कवर कर ली, उसके बाद ईपीजी पाठशाला के आप लेक्चर्स देख सकते हो, उन्होंने 30-30 मिनट के लेक्चर्स बना रखे हैं थ्योरीज पे। बाकी यूट्यूब पे जाके आप टाइप कर दो वो थ्योरी। पर हाँ ऐसे मतलब कोई जैसे बहुत, और एलेबामा यूनिवर्सिटी करके है, उनकी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज करके एक पेज है, वो हर कोई सजेस्ट करता है, तो वो आप जाके पढ़िए अच्छे से और उससे नोट्स भी बनाइए, वो काफी अच्छी वेबसाइट है, तो उधर से आप थ्योरीज कर सकते हो, तो वो हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलो अब काफी हो गया, अब छोड़ना है कि नहीं सर को? सर जो है वहाँ जीएस के लिए भी एक और जगह देना है, सारा कुछ तो आपने पूछ लिया, वहाँ क्या बताएंगे सर? मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/जयंत ऋषभ। सो मैंने और रैंक 104 हम दोनों ने ज्वाइंट टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो हम सारे नोट्स उस पर डाल रहे हैं, और मैं अपने एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स भी सारे डाल दूंगा उसके ऊपर। फिर से बोल दो, t.me/जयंत JAYANT ऋषभ RISHABH, सब स्मॉल में है। ठीक है, वहां बाकी सर से इंटरेक्ट करना, वहां पे हम डिस्कशंस भी रख सकते हैं, तो वहां पे क्वेश्चंस रख सकते हो। अब आपको शायद पिछली जो वीडियो बनाई थी हमने, उसका जो मेरा लास्ट कमेंट था कि यू पीपल यू सेव द डे फॉर, ऐसे ऐसे लाइट सवाल थे कि मेरे को खुद ही मजा नहीं आया कि आप लोगों ने किस तरह से इंटरेक्ट किया था, बट दिस सेशन आई थिंक यू पीपल वर क्वाइट एनलाइटेंड। अच्छे अच्छे सवाल किए, पर सर ने जो नाम लिए आपको उनके नाम पता है? अक्षत को जानते हो? श्रेयांश के बारे में पता है? दोनों को एमपी कैडर मिला है। वर्णित नेगी का नाम लिया सर ने, 13 रैंक था, मेरा ख्याल है शायद गुजरात कैडर मिला है उसको, कंफ्यूज कर जाता हूँ 3rd 4th में, एक को कर्नाटक मिला था, एक को गुजरात मिला, मेरे क्या गुजरात कर्नाटक है, कर्नाटक हाँ। कर्नाटक था, तो फिर वो हवन एक और से उनको गुजरात में लाए थे। तो आप उनको उनके जो भी हैं डायरेक्टली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? अगर नहीं रिस्पॉन्ड करें तो लिख देना कि हम आपके गुरु भाई हैं, जवाब दो, बस, ठीक है। बाकी आईएस बाबा में भी अभी हाँ सर, आईएस बाबा में कल सर जीएस को और डिटेल से डिस्कस करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा की जरूरत है आप लोगों को। इतना भी अगर आप वो बना लेते हैं बहुत 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 काफी है। एक चीज ध्यान में रखो, चीजों को समेटना आना चाहिए। विस्तार तो सब कर लेते हैं, चीजों को जो है वो एकदम से छितरा देते हैं, और समेटना कैसे है वो एग्जाम के बाद आदमी को समझ आता है कि ऐसे करना था, वैसे करना था, पहले से करो। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इंटर रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। इंटर रिलेशन सोचो, एंसरो से बेहतर क्या आपको मिलेगा इंटर रिलेशन के लिए, ठीक है? तो जैन जी को जो है एक बार फिर से बधाई भी दो और धन्यवाद भी दो, और भविष्य के लिए शुभकामनाएं, है ना? कि हम आपको टीवी में देखे, बड़े अच्छे अच्छे काम करते हुए सुने आपको, है ना? ठीक है, और आपके नाम हम भी आ रहे, हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं, बोलो इनको। थैंक यू सो मच सर, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।